Namaskar students, welcome again with topic the atmosphere. I hope you all are learning and revising the topics which we are going to study. This is your lecture number 4 of this chapter in which I am explaining the heat zone of the earth. In last topic we have discussed the factor of temperature. So first heat zone I am explaining you first is torrid zone. कौन सा है? torrid zone. Fine. Second I am going to explain that temperate zone. Temperate zone. Third is frigid zone. Now this is a diagram. It is very important. आपको मैं सारी चीजें जितना भी एक्सप्लेनेशन से थ्रू द डायग्राम्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट थिंग आपको जो मैं एक एक जोन को एक्सप्लेन करूंगी. फाइन. सो फर्स्ट यू लुक दिस डायग्राम. दिस लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर. क्या नाम है इसका? क्या नाम है? इक्वेटर. Which divide earth, this is the earth, divide earth into two equal half and half. So this is called the north and this is called the south. It means northern hemisphere and southern hemisphere. इतना clear है? First, this is the latitude which divide earth into two equal half. And value of this is 0 degree. कितना वैल्यू है? 0 degree. After that, I am describing this is the torrid zone. सबसे पहला हम कौन सा एक्सप्लेन करने वाले हैं? torrid zone. So this is torrid. This is also torrid. Fine. ये नॉर्थ का और ये साउथ का. Fine. ये क्या है? इक्वेटर. ये टॉरिड जोन और दिस इज ऑल्सो टॉरिड जोन. नाउ कहां तक है? दिस लैटिट्यूड. पहला लैटिट्यूड इक्वेटर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. फाइन. नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. फाइन. This is in the northern hemisphere and this is in the southern hemisphere. And value, this value is 23.5 degree north. हम north में तो north चलेंगे, यहाँ पे आएगा 23.5 degree south. Clear? 0 degree equator. Latitude, second important latitude is Tropic of Cancer. Value 23.5 degree north. In the southern hemisphere, important latitude Tropic of Capricorn, value 23.5 degree south. Clear? Now between this equator to Tropic of Cancer and equator to Tropic of Capricorn, this area is known as torrid zone. Clear? एक बार फिर से. This is equator. Important latitudes name are there. Fine. This is equator. Important latitude. Northern side Tropic of Cancer, southern side Tropic of Capricorn. Between the area of this zone is known as torrid zone. Now about the torrid zone. The torrid zone located, देखिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग में बता रही हूँ. आपने डायग्राम देख लिया, बुक में देखिए एक बार. The torrid zone located between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn receive maximum isolation. Isolation मतलब solar energy, sun heat. So this area, ये हमारा sun हो गया. So this area between equator to Tropic of Cancer and equator to Tropic of Capricorn, it receive direct sun rays. That's why it receive maximum isolation. Fine. Now second zone is temperate zone. Which zone is? Temperate zone. So this is temperate. सी से लिखती हूँ उसको. टेम्परेट जोन और ये हो गया आपका
टेम्परेट जोन। अब आप कहेंगे इधर भी आ रहा है, नॉर्थन में भी सदर्न में, जस्ट बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ जियोइड, ठीक है, सर्कल टाइप में है। सो जो टेम्परेचर ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, क्योंकि अर्थ बिल्कुल बीच है, सन बिल्कुल सामने होता है, और हमारी अर्थ किसके चारों तरफ मूव करती है, सन के। सो टेम्परेट जोन, अबाउट द टेम्परेट जोन। नाउ टेम्परेट जोन का एक बार हम इसको देख लेते हैं। इसका सबसे पहले जो है 66.5 डिग्री, यहां से 66.5 डिग्री हो गया, यहां से नहीं, नीचे, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ, और ये हो गया नॉर्थ। फाइन, यहाँ पूरा 90 डिग्री आ जाता है, यहाँ पर नीचे बिल्कुल पोल एरिया में क्या आ जाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यही यहाँ पर भी 23 और 66.5 डिग्री साउथ जो है, इसके बीच का एरिया कौन सा एरिया कहलाता है, टेम्परेट जोन। कौन सा एरिया, टेम्परेट जोन। एंड नाउ दिस एरिया रिसीव, ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं ना मोस्टली, वो किस एरिया में होते हैं, टेम्परेट जोन में। यहाँ पर सनरेज डायरेक्ट नहीं जाती है, स्लैंटिंग जाती है। जो क्लाइमेट, जो वेदर है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है। ठंडा कहाँ पे, जो फ्रिज जोन की बात करेंगे उसकी। इसमें देखिए लिखा द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल। यहाँ देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, अब यहाँ पे आ गया आर्कटिक सर्किल, और नीचे आ जाएगा अंटार्कटिक, ठीक है। नॉर्थ में तो क्या आ गया, आर्कटिक सर्कल, सर्किल लैटिट्यूड बोल सकते हैं इसको भी, और यहाँ पे आ गया अंटार्कटिक सर्किल। डायरेक्शंस का याद रखेंगे आप, ठीक है, ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। एरिया समझ में आ गया। फर्स्ट लाइन, दिस लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्किल, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्किल। फाइन, नेक्स्ट लाइन इज द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्किल। क्लियर है, बस पोजीशन यहाँ पे बता रहे कि टेम्परेचर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, क्योंकि यहाँ पे सन रेज है, थोड़ी सी स्लैंटिंग होती है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती। तो ये हीट जोन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। एक बार आपको इस वे में लर्न करेंगे तो इजीली लर्न होगा। लास्ट है आपका कौन सा जोन है, फ्रिज जोन, ठीक है, फ्रिजिड जोन, जैसा कि इसका नाम है। अब इसकी सबसे पहले लोकेशन देखिए, यहाँ पे 66 आएगा, मैंने कहा ऊपर 90 आ जाएगा। फ्रिज जोन्स लाई बिटवीन आर्कटिक सर्कल्स in the northern pole, in the northern hemisphere, and Antarctic circle, southern pole, southern hemisphere. These are coldest region of the earth. यहाँ देखिए 66.5 डिग्री के बाद जो भी ये फ्रीज जोन आ रहा है, मैंने अलग से यहाँ पे हाईलाइट किया है, यहाँ पर भी हाईलाइट किया है, ये नॉर्थ का है और ये साउथ का है। यहाँ पर सनराइज, सन रेज है जो पहुंच ही नहीं पाती। फाइन, so that's why it's rarely receive the sun rays and their climate is freeze, ये बिल्कुल फ्रीज होते हैं, बहुत बर्फ जमी रहती है इन एरियाज में। पोलर जो एरियाज होते हैं, इसलिए इनको पोलर एरिया या पोल एरिया भी कहा जाता है। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। सबसे पहले फिर से हीट जोन ऑफ द अर्थ, 3 हीट जोन है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन। टॉरिड जोन देखिए इक्वेटर टू 23.5 डिग्री आपका जो है इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, यहाँ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये पूरा एरिया है टॉरिड जोन फर्स्ट, ठीक है। देन टेम्परेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्किल, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक, ये आपका हो गया टेम्परेट जोन, ये हो गया दूसरा जोन आपका। एंड लास्ट इज ट्रॉपिक अंटार्कटिक सर्किल से बिल्कुल नॉर्थ पोल जो है, पोल एरिया। इसके बाद का जितना भी एरिया है वो किस में आएगा, फ्रिजिड जोन में। अब फ्रिजिड जोन, यहाँ पे क्लाइमेट क्या रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे पहुंच नहीं पाती। यहाँ डायरेक्ट है, बहुत हीट होती है, बहुत गर्मी होती है। सारे फॉरेस्टेड एरिया, इसे इक्वेटोरियल जोन भी कहा जाता है। यहाँ पे रेनफॉल भी सबसे ज्यादा होता है। टेम्परेट जोन में जाएंगे, स्लैंटिंग होती है, ग्रासलैंड्स जितने हैं वो सारे मोस्टली टेम्परेट जोन में, क्योंकि ना बहुत गर्मी होती है ना सर्दी। देन फ्रिजिड जोन में क्या है, सनरेज पहुंच नहीं जाती है, सोल्यूशन नहीं होता है, दैट्स व्हाई एज अ फ्रीज, इसको क्या कहते हैं, पोलर एरिया। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस टॉपिक।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विंड, हवाएं। इसके बाद आपका चैप्टर ओवर है। सो लास्ट जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब तक आपको ये जो डायग्राम है इसको बनाना है, इसको लर्न करना है, डिग्रीज याद रखनी है। 0 डिग्री फाइन, ये बिल्कुल बीच का है, तो ना नॉर्थ है ना साउथ, बिल्कुल सेंटर का है। 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 23 एंड हाफ डिग्री साउथ, देन 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, देन 66 एंड हाफ डिग्री साउथ। सो दिस इज अबाउट द हीट जोन ऑफ द अर्थ। आई होप आपको सारे लेक्चर जो है समझ में आया हो गया। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क टू मी। फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।